everyone, welcome to my channel Dare to Dream. We are going to learn health and physical education of class 6 from the EMBOS syllabus. We are going to learn chapter 3 today, that is cleanliness. Cleanliness is basic to health. In order to remain healthy, we must follow the rules of personal hygiene. So cleanliness is basic to health. If we want to maintain a good health, then we have to keep our body clean. And we have to follow certain rules of personal hygiene. We have learned in the previous chapter about personal hygiene. So personal hygiene means to keep our body clean. There are certain rules that we studied in last chapter about personal hygiene, that to take a bath daily, to wash our hair properly, to brush our teeth, to wear clean clothes, and many other rules of personal hygiene. Now let us have a look at what are the things we can do to keep our body clean. First is bathing. So bathing with cold water tones up our body. If we take bath with cold water, it freshens up our body as well as our mind. It gives us energy and it also cleans up our body. We must take bath early in the morning. So हमें हर रोज सुबह को नहाना चाहिए. We must rub our body well with soap and wash away all dirt with water. So जब हम नहाते हैं, हमें साबुन से और पानी से सारे मैल, बॉडी का जो सारा मैल है वो सारा धो देना चाहिए. We should clean our face, neck, ears, eyes, hands and feet and all other parts of our body thoroughly while bathing. जब भी हम नहाते हैं तो हमें अपना चेहरा, गर्दन, कान, आँख, हाथ, पैर और शरीर के जितने भी हिस्से हैं, सारे हिस्सों को अच्छे से साबुन और पानी से रगड़ के धोना चाहिए ताकि सारा मैल हमारे बॉडी से निकल जाए. Next point is washing. Washing our hands. We should wash our hands thoroughly with soap and water every time after going to toilet and before taking food and also after playing or working. So when we wash our hands after going to toilet, then before taking food or after working or playing, all the germs, all the dirts that are there in our hands gets washed away. And that's how we do not fall sick. We remain healthy. Warm water is good for washing hands. So when we wash our hands with warm water and soap, it cleans away all the germ and dirt from our hands easily. Next point for healthy body is cleanliness of teeth. Teeth plays a very important role in keeping our digestive system
healthy. We cannot chew our food properly without teeth. So अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हम हमारा जो खाना है उसको अच्छे तरह चबा नहीं पाएंगे, और जब हम अच्छे तरह से खाना चबा नहीं पाएंगे तो खाने के जो बड़े बड़े दाने हैं वो उसी तरह हमारे पेट में चले जाएंगे और हमें उन बड़े बड़े दानों को हजम करने में तकलीफ होगी। इसी तरह अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे हजम करने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचेगी। We cannot even speak properly without teeth. अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हम अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पाएंगे, कोई हमारे बात को समझ भी नहीं पाएगा। So teeth is very very important for us. Decaying of teeth leads to indigestion and foul smell from the mouth. Decaying का मतलब है दांतों का सड़ना। So जब हमारे दांत सड़ते हैं तब हमें इंडाइजेशन भी होता है। इंडाइजेशन का मतलब है बदहजमी। तो जब दांत सड़ते हैं तब बदहजमी क्यों होती है? क्योंकि दांत सड़ने की वजह से हमारे दांतों में दर्द होने लगते हैं, और जब दर्द होती है दांतों में तो हम खाने को अच्छी तरह से चबा नहीं पाते दर्द की वजह से, और खाने के बड़े बड़े दाने हमारे पेट में चले जाते हैं और हमारा पेट उस खाने को हजम नहीं कर पाता। इसी कारण से इंडाइजेशन यानी बदहजमी होती है। इसके अलावा हमारे मुंह से बदबू आती है। फाउल स्मेल का मतलब बदबू आना। तो जब दांत सड़ने लगता है तो हमारे मुंह से बदबू भी आने लगती है। तो हमारे दांत की सेहत को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ब्रश करना चाहिए। We need to brush our teeth. कब करना चाहिए ब्रश? Once in the morning and again at night before going to bed. इसके अलावा हमारे मुंह की कुल्ला करना चाहिए। We must rinse our mouth after taking food. Rinse का मतलब है कुल्ला करना। So when we rinse our mouth after taking food, what happens is the small particles that are hidden in our mouth, when we rinse our mouth, at that time all those hidden food particles comes out with water and then it cleans up our mouth. So we have to rinse our mouth every time after taking food. Next point is care of eyes. आँखों की देखभाल। Eyes are the most delicate part of the body. They require special care in order to function properly. हमारी जो आँखें हैं वो सबसे नाजुक हिस्सा है हमारे बॉडी का, और इन आँखों को स्पेशल केयर चाहिए ताकि वो लंबे समय तक काम कर सके। तो आँखों को सही रखने के लिए, आँखों की रोशनी सही रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Reading or writing in dim or excessive light is harmful for eyes. पढ़ाई लिखाई या फिर कोई भी काम डिम लाइट है मतलब कम रोशनी में नहीं करना चाहिए, या फिर एक्सेसिव लाइट मतलब ज्यादा रोशनी में भी हमें पढ़ाई लिखाई या ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो हमें कैसी रोशनी में पढ़ाई लिखाई या बाकी काम करने चाहिए? लाइट शुड बी जस्ट एडिक्वेट, मतलब रोशनी जो है वो जितनी जरूरत हो सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए, ना इससे कम ना उससे ज्यादा। एंड लाइट शुड फॉल फ्रॉम अबव
or from the left hand side. So रोशनी जो है, चाहे बल्ब की रोशनी हो या फिर सूरज की रोशनी, वो या तो ऊपर की तरफ ठीक हमारे ऊपर से आनी चाहिए या फिर हमारे बाएं तरफ से लेफ्ट साइड से रोशनी आनी चाहिए। ऐसे करने से हमारे आंखों को नुकसान नहीं पहुंचेगी। रीडिंग व्हाइल लाइंग इन बेड इज इंजूरियस टू हेल्थ। बिस्तर पे लेट के हमें कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, वो हमारे आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अगला जो पॉइंट है वो है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें हमेशा स्ट्रेट बैठ के करना चाहिए। हमारा जो बैकबोन है, उसको, रीढ़ की जो हड्डी है उसको हमेशा सीधा रखना चाहिए जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। एंड द रीडिंग डिस्टेंस शुड बी 30 to 35 सेंटीमीटर्स। तो हमसे हमारी जो किताब है या फिर जो कॉपी है, उसका डिस्टेंस, उसकी दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि हमारे आंखों को ज्यादा स्ट्रेस ना पहुंचे या नुकसान ना पहुंचे। Eyes should be splashed with cold water early in the morning. Splashed मतलब छिड़कना। So हमें हमारे आंखों में सुबह को ठंडे पानी से छिड़कना चाहिए, ताकि आंखों की जो मैल है वो सब धुल जाए और आंखों में एक फ्रेशनेस आ जाए। जो आंखों में जो स्ट्रेस है, वो सारा स्ट्रेस आंखों से निकल जाए। In case dust or dirt enters our eyes, we should not rub our eyes with hand, but wash our eyes with plenty of water. अगर हमारी आंखों में डर्ट, मिट्टी या धूल वगैरह चले जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आंखों को कभी रब नहीं करना चाहिए अपने हाथों से, बल्कि क्या करना चाहिए? हमें ठंडे पानी से, ज्यादा पानी से हमें अपने आंखों को धो देना चाहिए, ताकि वो जो धूल या मिट्टी हमारे आंखों में चली गई है, वो पानी के साथ बाहर निकल आए। आंखों के अच्छे सेहत के लिए हमें आंखों के लिए जो अच्छा खाना है, वो खाना भी लेना है। अब आंखों के लिए किस तरह का खाना अच्छा है? The foods rich in vitamin A and B complex. खाने में जिस तरह के खाने में विटामिन ए या फिर और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो खाना हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आंवला, फिर दूध, घी, शहद, ये सारे चीजें हमारे आंखों के लिए अच्छा है और हमें इन चीजों को खाना चाहिए, ताकि हमारी आंखों की रोशनी लंबे समय तक बरकरार रहे। That's all for today. Thank you for watching my video.